definition and signs and symptoms of the somatoform disorders. Today we'll be discussing regarding the incidence first and then the etiology. So incidence of somatoform disorders, many studies have proven that for somatoform disorders the incidence in general population is lies between 5 to 7%. So 5 to 7% of the general population is suffering from somatoform disorder. Then if we talk about conversion disorder, the incidence rate ranges between 5 to, in case of the conversion disorders, the incidence ranges between the 5 to 30%. Hypochondriasis or illness anxiety disorder ranges between 1 to 5%. Okay, the incidence of illness anxiety disorder or hypochondriasis ranges between 1 to 5%. Then we lastly studied about fictitious disorder, Munchausen syndrome, ranges between 0.8 to 1%. Okay, so this is regarding the incidence, prevalence, and as we know, we have initially studied that it is more common in women than in men. So if we are talking about gender, there more women will be affected than the men will be affected. Although ratio isn't clearly defined, but it has been, some studies have seen 3:1 ratio, 2:1 ratio has also been advocated by some studies. Okay, so in case of the somatoform disorders, we have 5 to 7% of the incidence. Then we have about conversion disorder, we have 5 to 30% of the incidence. Then about hypochondriasis, we have 1 to 5%, and then fictitious disorder has 0.8 to 1% of the incidence of occurrence of in the general population. Okay, now we will move to the etiology, predisposing factor. Rather than etiology, we shall write about predisposing factors. So predisposing factors, like we know, genetics plays an important role in the in this all the psychiatric illnesses, and somatoform disorders are no different. In case of the somatoform disorders, it has been seen the first degree relatives of the patient suffering from somatoform disorders have a higher incidence than that of the general population. Say in case of the somatoform, it was between 5 to 7. Now if they are first degree relatives, there will be, simply we can say, greater than 7. Okay, so that signifies genetics plays a role in development of the somatoform disorders. Now other than genetics, we have neurochemical, biochemical. Biochemical role is that of serotonin and endorphins. Oh, there is, this indicates deficiency. There is, in case of whether it is conversion disorder, somatoform disorder, fictitious disorder. So in all these disorders, what has been seen mostly is, or illness anxiety disorder, it has been seen that there is deficiency of the serotonin as well as the endorphins. That is why there is more pain, because endorphins are decreased now. What will endorphins do? They will enhance our capacity to enjoy, or they will enhance our capacity for happiness, or they will enhance our capacity for being happy or being cheerful. तो जब इंडोर्फिन्स कम होंगे, नेचुरली हमारी बॉडी में चीयरफुलनेस या हैप्पीनेस कम हो जाएगा, तो पेन के होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. ओके, so this was regarding the biochemicals. Only two significant over here. One is deficiency of the serotonin and deficiency of the endorphins is related to the related in the somatoform disorders, all kinds of them. Okay, then we talk about psychodynamic approach. In psychodynamic approach, we have different for conversion disorder, we have different for fictitious disorder. So psychodynamic approach is one of the most common is
one of the most commonly accepted beliefs in psychodynamic approach. First psychodynamic view is that individual tries to hide his lower self-esteem. So how does an individual try to hide his lower self-esteem? With somatoform disorder or with conversion disorder or with fictitious disorder? So in here, we'll take an example. For example, any person who is having lower self-esteem, will he directly say that, what is self-esteem? Is degree of self-worth या self-respect. Self-respect. जो it is the डिग्री ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट जो हम अपने आप के लिए रखते हैं. सेल्फ एस्टीम वही होता, वो रिस्पेक्ट है जो हम खुद को करते हैं. ठीक है. एक पर्सन या अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करता है एक इंडिविजुअल, हम डायरेक्टली किसी को ये नहीं बोलेंगे कि हम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या हम अपने आप पे कम भरोसा करते हैं. ठीक है. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि it is for us easier to say that I am suffering from physical illness rather accepting the mental illness. मेरे लिए ये इजी होता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को कोई मेंटल इलनेस है, अभी somatoform disorders are all psychiatric disorders. So for me it is easier to accept that I am suffering from physical illness, which is like pain. मेरे को इधर पेन हो रहा है या मेरे को कोई severe condition है या I start to be all of a sudden I become aphonic or I show pseudo paralysis. So it is easier for me to show physical symptoms than to accept that I am mentally ill. तो इसको बोलते हैं कि फिजिकल ये पर्सन्स होते हैं, जिन पर्सन्स में लोअर सेल्फ एस्टीम होता है, ये क्या अपना लोअर सेल्फ एस्टीम हाइड करने के लिए क्या करते हैं, फिजिकल सिम्टम्स में इनको दे शो फिजिकल सिम्टम्स और दे कंप्लेन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स. ओके. सो दिस इज वन व्यू ऑफ द इन द साइकोडायनेमिक थ्योरी. अदर व्यू ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी इज दैट it is a defense mechanism against the guilt. Pain is defense mechanism against guilt. पेन क्या होता है इधर? अदर साइकोडायनेमिक व्यू क्या बोलता है कि ये लोग जिनको भी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो, चाहे कन्वर्शन डिसऑर्डर हो, चाहे फिक्शियस, ज्यादातर ये फिक्शियस डिसऑर्डर के साथ रिलेट किया जाता है ये वाला व्यू. अगर किसी को फिक्शियस डिसऑर्डर है तो वो क्या करता है कि बिकॉज दे फील गिल्टी, फॉर एग्जाम्पल दे कैन नॉट कैरी आउट सर्टन एक्टिविटीज. सो अभी ये कुछ काम नहीं कर सकता है, इस काम के नहीं करने की वजह से इसको क्या होता है, गिल्टी फील होता है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं बुरा हूं. ओके. ऑल दोज guilt feelings are generated within him. So now what he will do, he will inflate self harm or he will inflate pain. तो खुद के ऊपर पेन डालेगा तो किसके अगेंस्ट डिफेंस करता है, गिल्ट के. दैट पेन एक्ट्स एज ए डिफेंस अगेंस्ट द गिल्ट. Okay, so whether it is conversion disorder or somatoform, mostly this is related with the fictitious disorder, but it can also be related to somatoform disorders, wherein pain is thought to be against. Pain is because I am less capable, so that is why I deserve this pain. Okay. Or in case of the fictitious disorder, I will inflict pain because I am bad or I have done wrong in the past, or I am doing wrong now, or I have committed wrong. Sometimes they imagine also I might commit wrong, so because of that they will have in advance they will feel guilt and they will produce self-harm, which is pain. Okay. So this was second psychodynamic.
Third approach we are talking about over here is which Freud mentioned about कि जो ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं मोस्टली कन्वर्शन के बारे में उन्होंने बोला, या किसी भी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में बोला उन्होंने कि बोला कि इट इज ड्यू टू द रिप्रेशन से रिप्रेसिव एंजाइटी, हम यहाँ रिप्रेसिव एंजाइटी, ओके. सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिप्रेसिव एंजाइटी. व्हाट इज रिप्रेशन? एज वी हैव स्टडीड, it is involuntary forgetting of painful experiences या stimulus. तो जब भी हमारे साथ कोई भी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे जब हम थे, हमको किसी ने मारा था, डू वी रिमेम्बर दैट? नो, वी टेंड टू फॉरगेट दैट. बट इफ द इवेंट वाज सो ट्रोमैटिक, अभी ये इवेंट क्या था, बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक था. से फॉर एग्जांपल सम चाइल्ड वाज अब्यूज्ड, फिजिकली अब्यूज्ड, कि उतना मारा उसको कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. ऑब्वियसली ही इज अ चाइल्ड. अगर फादर ने मारा, ही वोंट रिमेम्बर दैट, like he won't carry on to remember that for his life. He will forget that. Or as adults also, we will forget whatever has happened with us with the time. Although it might be very difficult for adults to forget it, but in case of the childhood, forgetting by repression is most common. But it is only the painful experience we are talking about here. तो अभी इस चाइल्ड को बहुत ज्यादा मारा, अभी ये क्या रिमेम्बर नहीं करता है, सीधा ये भूल जाता है. बट वी ऑल्सो नो दैट ये क्या भूल जाता है, दिस रिप्रेशन इज ये अनकॉन्शियस अवेयरनेस में. लाइक वी हैव 3 लेवल्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. अभी ये हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है. और अनकॉन्शियस मेमोरी में क्या होता है कि जब हमारी अडल्ट लाइफ में आगे सिमिलर सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जाम्पल वी आर नाउ द सेम चाइल्ड वाज अब्यूज्ड अगेन, से नॉट टू द एक्सटेंट which he was abused before, but there was some sort of the abuse. अभी क्या वो memories in the unconscious mind they start to, वो क्या आ जाते हैं, वो वहां पे unconscious awareness में थोड़ा मूव करना चालू करते हैं to subconscious level. Although they don't come to the unconscious level, but they start to generate anxiety. Why they will generate anxiety? Because जब भी हमारे साथ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होता है तो उसके साथ जो फीलिंग्स होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स एसोसिएटेड विथ एनी ट्रोमैटिक इवेंट. सिंस दिस चाइल्ड हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड दीज फीलिंग्स व्हिच वर एसोसिएटेड विद द ट्रोमैटिक इवेंट, देन सो दे विल प्रोड्यूस व्हाट? Repression. Such they will produce anxiety. Such anxiety is called as repression anxiety. तो फ्रॉइड ने क्या बोला कि कोई भी मॉरल या एथिकल इसकी बॉन्ड अगर चाइल्ड एक्सप्रेस, अभी ये जरूरी नहीं है कि रिप्रेशन से ही आ जाएगा. अगर मॉरल या एथिकल बाउंड्रीज ऐसी है कि जिनसे चाइल्ड वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता फीलिंग्स वेदर दे आर अब्यूज के बारे में, तो वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू द सोमेटोफिनेमिक्स. In family dynamics, psychologists or psychologists have believed that the persons or the clients with somatoform disorders had dysfunctional family. When they were growing up, they had a dysfunctional family atmosphere. कि जहां पे child was neglected या अब्यूज. चाइल्ड को क्या किया गया इस फैमिली में, या तो नेग्लेक्ट किया गया या अब्यूज किया गया. अभी ये चाइल्ड क्या करेगा, क्योंकि ये चाइल्ड को नेग्लेक्ट किया गया और अब्यूज किया गया है चाइल्ड को, तो व्हेनेवर ही वाज इल, व्हेनेवर ही फेल्ट इल, उस चाइल्ड को क्या बन गया, जब डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में हो और अगर हम बात करेंगे, एंड दे हैड chaotic family एटमोस्फेयर या फैमिली एनवायरनमेंट. और फैमिली में पूरा क्या था, केओस था, मतलब लड़ाई झगड़ा फुल होता था पेरेंट्स के बीच में. एट द सेम टाइम दोज पेरेंट्स यूज्ड टू नेग्लेक्ट द चाइल्ड फॉर हिज केयर एंड ऑल्सो अब्यूज हिम फिजिकली और वर्बली, व्हाटएवर अब्यूज you might suggest, you might think of
तो इधर क्या होता था, चाइल्ड को अब्यूज करते थे और चाइल्ड को नेग्लेक्ट करते थे और साथ में आपस में पेरेंट्स झगड़ा भी करते थे। तो जब भी पेरेंट्स झगड़ा करते थे, अभी चाइल्ड इल हो गया, इलनेस ऑफ द चाइल्ड। अभी ये नेग्लेक्ट पेरेंट्स कर सकते हैं? नो। चाइल्ड को क्या मिल गया? इमोशनल सपोर्ट। ना नेग्लेक्ट रह गया ना अब्यूज रह गया। चाइल्ड को इमोशनल सपोर्ट भी मिला और केयर भी मिला। पहले केयर मिलेगा फिर हम इमोशनल सपोर्ट के बारे में, वी शैल ओनली नॉट इमोशनल सपोर्ट, सॉरी, हम केयर के बारे में। चाइल्ड रिसीव्ड नाउ केयर बिकॉज ऑफ द इलनेस, he became the focus of his family and he started to receive proper care. और जब वो when the parents are engaged in providing care to their child, now the chaotic family environment, या जो उन दोनों के बीच में झगड़ा था, सपोज उन दोनों के बीच में सपोजिटली झगड़ा था, तो वो झगड़ा रहेगा अभी? नो। सो देयर विल बी फैमिली, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नो फैमिली इश्यूज या फैमिली इश्यूज रिजॉल्व। जब ये फैमिली इश्यूज रिजॉल्व करता है, क्या कौन रिजॉल्व करेगा? चाइल्ड का इलनेस फैमिली इश्यूज रिजॉल्व करेगा। वी हैव टॉक्ड अबाउट प्राइमरी गेन, सेकेंडरी गेन, दिस बिकम्स टर्शियरी गेन। क्या बन जाएगा? टर्शियरी गेन बन जाएगा। जब चाइल्ड की इलनेस की वजह से उसकी फैमिली का एटमॉस्फेयर या उसकी फैमिली का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सो इधर क्या बन जाता है? टर्शियरी गेन बन जाता है। प्राइमरी गेन क्या था इस चाइल्ड के लिए? फॉर एग्जांपल, ये चाइल्ड को होमवर्क करना था, अभी ये चाइल्ड इल हो गया तो इसको होमवर्क नहीं करना है। नाउ दैट इज हिज प्राइमरी गेन। सॉरी, अभी इसको केयर मिल गया, दैट इज हिज प्राइमरी गेन। अभी इसको होमवर्क भी नहीं करना है, दैट इज हिज सेकेंडरी गेन। मीन्स वट एवर हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज, ही वॉज रिलीव्ड फ्रॉम हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट प्राइमरी गेन वॉज टू रिसीव द केयर, ओके। सेकेंडरी मॉर्बिड गेन, या हम इसको ऐसा भी बोलते हैं प्राइमरी मॉर्बिड गेन, प्राइमरी सेकेंडरी मॉर्बिड गेन एंड टर्शियरी मॉर्बिड गेन। ठीक है, तो प्राइमरी गेन था कि इसको केयर मिल गया, सेकेंडरी गेन था कि इसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी अभी ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी फ्री हो गया। टर्शियरी गेन ये हो गया जब कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, अदर पर्सन इन्वॉल्व होता है या अदर पर्सन को बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स टू द प्राइमरी पर्सन। अभी यहाँ पे कौन था वो थर्ड पर्सन? जो फैमिली इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए, या जो फैमिली में झगड़ा था वो रिजॉल्व हो गया, उसको हम टर्शियरी गेन बोलते हैं। Once more say it, repeat this. In family dynamics, psychologists mostly say these childs who are suffering, those individuals who are suffering from somatoform disorders as children, they were neglected and abused by their parents, and they also had a chaotic family environment. And whenever these children felt ill, whenever these children were ill, तो उसकी वजह से क्या होगा? Because of their illness, now child received extra care. Child started to receive the care, which is primary gain. And then because of his illness, he also gets relieved from his responsibility. That is his secondary gain. And also because of the illness of the child, the family issues were resolved. That is the tertiary gain. अगर हम प्राइमरी गेन, सेकेंडरी गेन और टर्शियरी गेन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, विच इज इन द लर्निंग थ्योरी। लेकिन हमने यहाँ पे इतना सीखना है कि जो ये होते हैं, जो सोमेटोफॉर्म वाले एडल्ट्स होते हैं, उनका चाइल्डहुड अब्यूजिव होता है, नेग्लेक्टेड होता है और डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट से आते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट learning theories. Okay, so this also talks about same thing जो हम अभी बात कर रहे थे। इन लर्निंग थियरीज को समझने से पहले हमको याद वापस रिमाइंड करना है जो बीएफ स्किनर ने दिया था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें बीएफ स्किनर ने बोला था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड negative reinforcement. What is positive reinforcement and negative reinforcement? Positive reinforcement मतलब किसी भी एक भी
if we want to make any good behavior part of the child's self system, so we must reinforce this behavior positively, that means with reward. For example, अगर हम इसको समझना है तो सिंपल एक एग्जांपल लेंगे कि जब भी कोई चाइल्ड एक अच्छा काम करता है जो कि हमको पसंद है, फॉर एग्जाम्पल ही गोज एंड प्रेज, ठीक है, वो नमाज पढ़ता है जाके, तो हम उसको नमाज पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा बेटा ऐसे ही नमाज पढ़ते रहो, ठीक है। और अगर वो किसी दिन नमाज नहीं पढ़ता है तो उस दिन हम क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ा। अगर वो डांटना कैसा होगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो जो हमने उसका तारीफ किया दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और जो हमने उसका ये किया उसको डाटा दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो अभी लर्निंग थ्योरी भी इसी के बारे में बात करता है। लर्निंग थ्योरी बोलता है कि लर्निंग थ्योरी क्या बोलता है, सिक या सोमैटिक कंप्लेंट्स आर ऑफन रीइंफोर्सर। कैसे, क्या बोलता है लर्निंग थ्योरी, सोमैटिक कंप्लेंट्स आर ऑफन रीइंफोर्सर। हाउ, बाय leaving the client from facing the stressful events या challenging events, ओके, या रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ये क्या बोलता है इसमें लर्निंग थ्योरी क्या बोलता है कि जो सोमैटिक कंप्लेंट्स है ये ऑफन रीइंफोर्स हो जाते हैं, जैसे हमने अभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किया, पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाते हैं। कैसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोमैटिक कंप्लेंट्स द इंडिविजुअल गेट्स रिलीव्ड from experiencing the stressful event, or experiencing the stressful environment, or experiencing his responsibility, or from performing his responsibility. For example, ये ऐसा है कि एक बार सपोज किसी एक बच्चे, आप में से किसी एक या मुझे एक बार में क्या हो गया, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मेरी प्रिपरेशन की जगह में मैंने क्या किया, अभी मैंने बोला कि मैं आज इल हूं, सो आई कैन नॉट टेक क्लास नाउ टुडे, सो आई शोड सब सोमैटिक कंप्लेंट्स, इधर दर्द है उधर दर्द है, या ऐसे ही फिक्शियस डिसऑर्डर बोला कि मैं फिक्शियसली मैंने ऐसे ही मेक आउट किए सिम्टम्स कि इधर दर्द है मुझे उधर दर्द है, क्लास नहीं ले सकता। तो क्योंकि आज मैंने ये बहाना बनाया अपने फिजिकल कंप्लेंट्स का, आज बहाना बनाया, ये बहाना मुझे उस वक्त क्या हुआ, पॉजिटिवली रीइंफोर्स हुआ। क्यों, क्योंकि मैं क्लास लेने से बच गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा, जब भी मेरी रिस्पॉन्स प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए क्या कर सकता है, 100% ये चांस है कि मैं वापस से यही दौड़ लगा सकता है। आज मैंने अगर कल दौड़ के बारे में बोला, कल भी बोलेगा कि मुझे कल दौड़ है इसलिए मैं क्लास नहीं लेगा, अदरवाइज आई एम प्रिपेयर्ड, बट एक्चुअली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, सो आई विल से I am prepared guys, but today my head is no, I'm not feeling well, so our head is aching, our body is aching, something I will tell and then I will make an excuse. अगर हम आपकी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अगर हम एक बार किसी पेन वेन पे छोड़ देते हैं, ओके आज एग्जाम मत दो क्योंकि आपको पेन है या कलर्स दो है जो भी है, तो आप हर एक टाइम पे एग्जाम पे क्या बोलोगे कि नहीं सर मुझे पेन है, जिस टाइम पे भी आपको ये लगता है कि आप फेल हो रहे हो। So this is about the learning theory. So this was all about the predisposing factors which are seen in case of the somatoform disorders. In our next class, we will be discussing regarding amnesia, dissociative amnesia, then multiple personality disorder, dissociative identity disorder, and then we will be also discussing about depersonalization, derealization, and the etiopathology and also the predisposing factors for that. So before next class we will take couple of days break because I have to do first year psychology now. So after couple of days one more lecture will be uploaded. Thank you.